Hello class 7th and 8th, 9th, 10th, 11th and 12th students. Today I am going to explain before all of you conjunction. What is conjunction? Actually, word conjunction has been constructed with the help of two words con plus junction. जैसा कि एज यू हियर यूजुअली मुगलसराय जंक्शन, बनारस जंक्शन, दिलदार नगर जंक्शन या एनीवेयर प्लेटफॉर्म इज सेड, स्टेशन इज सेड जंक्शन. जंक्शन मीन्स द प्लेस वेयर मोर देन टू वेज आर ज्वाइंड or more than two ways, two things meet with each other. That is called conjunction. Junction. And conjunction means making relation. Such junction is called conjunction. So definition of conjunction is that conjunction is joining word. In simple word you can say conjunction is joining word. Means conjunction joins to anything, two or more than two. That two thing may be in grammar, English grammar second part of your study syllabus. Two words, two sentences, two phrases, two clause, two verb, two noun, pronoun, any parts of speech, whatever be there, maybe two or more than two, and conjunction joins all these more than two or more than two. So conjunction is joining word, or you can say conjunction joins two or more clause, phrase, words, sentences, proverbs, idioms, etc., whatever is there. So I think it is clear for you that conjunction is joining word. It joins two words, phrases, or anything. For example, you can say I want to write. One sentence, full stop. Second sentence, I want to read. यानी आप कह रहे हो कि मैं लिखना चाहता हूं, एक सेंटेंस. फिर आप कहते हो कि मैं पढ़ना चाहता हूं, दूसरा सेंटेंस. अब ये दो सेंटेंस, वन टू, फर्स्ट सेकेंड, टू सेंटेंस हुए आपके. दीज आर द टू सेंटेंसेस, डिफरेंट सेंटेंसेस by you. But if you want to say these two sentences in one line, then you shall have to use conjunction to join these both sentences. यदि आप एक लाइन में इन दोनों वाक्यों को, कि मैं लिखना चाहता हूं पहली बात, दूसरी बात कि मैं पढ़ना चाहता हूं, इन दोनों को आप एक वाक्य में, एक लाइन में, एक बार में कहना चाहते हो, तो आपको कंजंक्शन का यूज करना पड़ेगा. अब कंजंक्शन कई तरह से आप यूज कर सकते हो. अब आप कह सकते हो कि आई वॉन्ट टू राइट एंड रीड, या आई वॉन्ट टू रीड एंड राइट. मैं पढ़ना और लिखना दोनों चाहता हूं. यहाँ पे दो वर्ब हुए ना, रीड एंड राइट. रीड और राइट दो वर्ड हैं, ये वर्ब हैं. इन दोनों को आप कंजंक्शन एंड से जोड़ रहे हो. इसी तरह आगे भी आप दूसरे तरीके से भी इसी बात को कह सकते हो कि आई वॉन्ट नॉट ओनली रीड बट ऑल्सो राइट. मीन्स मैं सिर्फ पढ़ना ही नहीं बल्कि लिखना भी चाहता हूं. तो इस तरह से आप कंजंक्शन यूज करके कोई भी वाक्य, सेंटेंस बना सकते हैं. वाक्य की बात करें, दो सेंटेंस कैसे बनते हैं, दो सेंटेंस कैसे आप ऐड कर सकते हैं कंजंक्शन से, तो आप कह सकते हैं कि रवि इज गोइंग टू प्ले, फुल स्टॉप, सोहन इज गोइंग टू रीड. यानी रवि पढ़ने जा रहा, खेलने जा रहा है, और सोहन पढ़ने जा रहा है. अब देखो सेंटेंस अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं. दो सब्जेक्ट हैं, एक सब्जेक्ट है, एक करता है जो कि पढ़ने जा रहा है, एक करता है जो खेलने जा रहा है. सेंटेंस अलग हैं. अब यहाँ पे आप दो सेंटेंस, अपोजिट नेचर टाइप के सेंटेंस हैं, इनको आप ऐड करोगे, ऐड करना पड़ेगा. तो आप कह सकते हो कि रवि इज गोइंग टू रीड बट सोहन इज गोइंग टू प्ले. या इसी को रवि इज गोइंग टू रीड व्हाइल, जबकि सोहन इज गोइंग टू
प्ले, अलग अलग हुए ना दो सेंटेंस, दोनों सेंटेंस आपके जुड़ गए। तो ये से कंजंक्शन है। इसी तरह से आप सेंटेंस, फ्रेज, क्लॉज, वर्ड्स, आइडम्स, प्रोवर्ब्स, एनी पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एनीथिंग कैन बी एडेड विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज कंजंक्शंस। अब टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस, so conjunctions are mainly, look here one thing, conjunctions are of three types, look here, coordinating conjunction, subordinating conjunction and correlative, this is the third, correlative conjunctions. And now what is coordinating conjunction? Coordinating conjunction means co plus order, ordinating is order, co means equal, यानी such sentences which has equal value in sense or which has equal importance, those sentences are called coordinating conjunctions, sorry, coordinating sentences, and these are used with the help of coordinating conjunctions. जैसे मैंने पहले ही कहा कि सोहन wants to read, मोहन वांट्स टू प्ले, दोनों अपने आप में स्वतंत्र हैं, कंप्लीट सेंस रखे हुए हैं, दोनों सेंटेंस का अपना अपना अलग सेंस है, ये दोनों एक दूसरे पे निर्भर नहीं है। सेंस क्लियर हो जा रहा है कि सोहन जो है पढ़ना चाहता है, ही वांट्स टू रीड, और सेकंड का क्लियर होता है सेंस कि मोहन जो है वह खेलना चाहता है। दोनों सेंस है, इसमें कहीं आपको डाउट नहीं है कि क्या सेंस है। सेंस इज कंप्लीट, सो इट इज अ कंप्लीट सेंटेंस। व्हेन यू शैल हैव टू ऐड, जब आपको जोड़ना पड़े तब यू शैल हैव टू यूज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। व्हाट आर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस? एंड, बट, नॉट ओनली, बट आल्सो, येट, सो, देन, सो दैट, etc. There are a lot of coordinating conjunctions. So you shall have to use with the coordinating conjunctions, as I told, either but, either while be used here. For example, Sohan wants to play but Mohan wants to read, अब but की जगह while भी यूज कर लो। सेकेंड एग्जाम्पल, रवि इज पुअर, फुल स्टॉप, रवि इज कंटेंट, कंटेंट मीन संतुष्ट। यहां ये हुआ कि रवि जो है गरीब है, बट दूसरे वाले में आप कह रहे हो कि वह संतुष्ट है, यानी एक तरह से सेंस यह निकल रहा है, दोनों का अपना अपना सेंस है, यानी गरीब तो है लेकिन संतुष्ट है, दोनों में एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। ऑल दिस बोथ डू नॉट डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर द कंप्लीशन ऑफ दिस सेंस, सो बोथ आर द coordinating rank of the coordinating rank having independent sense, complete sense, there is no need for the support of each other for to the both sentences. लेकिन अब आप इसे जब जोड़ोगे, when you will join both these, then you shall have to say Ravi is poor yet he is contented, रवि गरीब है फिर भी वह संतुष्ट है। या इसी को कह सकते हो, दाउ रवि इज पुअर कॉमा ही इज कंटेंटेड, यहाँ कॉमा का सेंस जो है आएगा वह येट देगा, येट का सेंस होगा। जब दाउ लगेगा तो येट नहीं लगेगा, येट की जगह पे कामा लगेगा, अन्यथा दाउ नहीं लगाते हो आप, सिंपली कहते हो कि रवि इज पुअर, तब वहां पे आप येट लगाओगे, येट ही इज कंटेंटेड। दिस इज द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग सेंटेंसेस एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। नाउ subordinating conjunction, sub plus ordinating, sub means secondary, sub means dependent, sub sub, ordinating means in order, यानी जो क्रम में, इंपॉर्टेंस में, सेंस में अपनी कंप्लीट सेंस के लिए दूसरे क्लॉज पे, दूसरे फ्रेज पे डिपेंड होते हैं, तो वो सबऑर्डिनेटिंग सेंटेंस कहलाते हैं। और ऐसे ऑल सच सबऑर्डिनेटिंग सेंटेंसेस आर एडेड विथ द मेन क्लॉज, मेन फ्रेज, क्लॉज, व्हाट एवर यू कैन से, विद द हेल्प ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। यानी हमने कहा कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वे होते हैं कि सब का मतलब होता है सेकेंडरी, डिपेंडेंट, निर्भर किसी दूसरे पर। ऑर्डिनेटिंग मीन्स ऑर्डर में, यानी जो ऑर्डर में ऐसे वाक्य
जो अपने कंप्लीट सेंस के लिए किसी दूसरे मेन क्लॉज पे डिपेंड होते हैं, किसी ऐसे क्लॉज पे या सेंटेंस पे डिपेंड होते हैं जिनसे उनका सेंस पूरा होता है, तब ये जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाते हैं। यानी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या सबऑर्डिनेटिंग सेंटेंस कंजंक्शन का यूज जगह किया जाता है जहां दो तरह के सेंटेंस होते हैं। एक तो मेन क्लॉज होता है यानी डिपेंडेंट सेंटेंस होता है, उस वह अपना सेंस कंप्लीट देता है, वह किसी दूसरे पे निर्भर नहीं होता। और उसी में जो कंजंक्शन के द्वारा जुड़ा हुआ दूसरा वाक्य होता है वह अपने सेंस के लिए मेन या प्रिंसिपल क्लॉज पे निर्भर होता है। अगर प्रिंसिपल क्लॉज से न जोड़ा जाए सेकेंड क्लॉज को जो सबऑर्डिनेट है, डिपेंडेंट है, तो यह सेंस पूरा नहीं होगा। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के ढेर सारे एग्जाम्पल है, दैट, सो, फॉर एटसेट्रा, लॉट ऑफ देयर अदर एडवर्ब ऑफ प्लेस, टाइम, मैनर, रीजन, कंपैरिजन, कॉन्टेक्स्ट एटसेट्रा एटसेट्रा, लॉट ऑफ इज देयर आर देयर। आई शैल डिस्क्राइब इन these all in next video, but I want to introduce you only that subordinating conjunctions are those conjunctions which joins the dependent clause with the main clause। dependent clause means जिसका सेंस अधूरा हो वह डिपेंडेंट क्लॉज होता है, और उसे हम मेन क्लॉज से जोड़ दें, प्रिंसिपल क्लॉज से जिसका सेंस जो है कंप्लीट है, तब यह आपको कंप्लीट सेंस देगा। इट विल गिव यू अ कंप्लीट सेंस एंड इट विल डिस्क्राइब द होल सिचुएशन क्लियरली बिफोर all of you। Example, for example, Mohan says that I will go to market। मोहन कहता है कि मैं मार्केट जाऊंगा। अगर हम मोहन सेज रिमूव कर देते हैं, इफ मोहन सेज दिस प्रिंसिपल सेंटेंस और क्लॉज इज रिमूव्ड, देन दैट आई शैल गो टू मार्केट, दिस विल नॉट गिव अ क्लियर। अगर हम ही आपसे कहें कि दैट आई शैल गो टू मार्केट, कि मैं मार्केट जाऊंगा, तो आप डाउट हो जाओगे कि दैट, व्हाई फॉर दिस दैट बीन यूज्ड हियर, यहाँ पे दैट का यूज क्यों हो गया। लेकिन हम इसी को ऐड कर देंगे मोहन सेज से या किसी अदर का आप ही का नाम लेकर कि ही सेज, तो सेंस क्लियर हो जाएगी कि उसने कहा था कि वह जा रहा है। तो ये इसका मतलब कि यह जो आई शैल गो टू मार्केट है, इट हैज बीन यूज्ड फॉर दैट पार्टिकुलर मोहन या सोहन, व्हाट एवर और हूएवर इज देयर। This is the example of subordinating clause. Now correlative clause. Actually there is no correlative clause or correlative conjunctions. All these correlative conjunctions are the essential part of the coordinating conjunction and coordinating clause। यानी जो पहले हमने फर्स्ट ऑफ ऑल बताया आप लोगों को कि कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज यानी इक्वल रैंक, को मीन्स इक्वल, ऑर्डिनेटिंग मीन्स ऑर्डर, समान और बराबर रैंक के लेवल के जो कंजंक्शन होते हैं वो कोऑर्डिनेटिंग कहलाते हैं। तो ये वहीं पे यूज होते हैं ये भी। लेकिन मॉडर्न ग्रामरियन जो हैं, दे हैव बीन क्रिएटेड अ थर्ड टाइप ऑफ कंजंक्शन, थर्ड टाइप ऑफ वर्ड्स, दीज आर कॉल्ड द कोरिलेटिव कंजंक्शन by dividing these from the coordinating conjunction, but mainly these are the essential, these are the part and parcel part of the coordinating conjunctions. But why these correlative conjunctions are called correlative? Because these are always used in pairs. These can't be used without pair. For example, either or, neither nor, or nor, etc. not only but also, ये सब जो है ऑल दीज आर द कोरिलेटिव, क्योंकि हमेशा साथ में यूज होते हैं। और ये उसी जगह होते हैं जहां ऑप्शन हो आपको, दो फैक्ट को ऑफ द सेम फैक्ट ऑफ द टू सेंटेंसेस, एसेंशियल फैक्ट्स आर टू बी एडेड, देन दिस कोरिलेटिव कंजंक्शंस आर यूज्ड। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको कहना है, इफ यू वांट टू से सोहन इज थीफ, फुल स्टॉप, फिर अलग से कहना पड़ा, डाउट है आपको, तो आप कहते हो हिज ब्रदर इज थीफ, तो अब तो सेंटेंस दो अलग हो गया। यानी आपने दोनों को प्रूफ कर दिया कि कह दिया कि थीफ है, लेकिन आपको भी डाउट है कि नहीं एनी वन इज थीफ, तो अब उसे आप हाउ कैन यू एक्सप्रेस इट क्लियरली, देन यू शैल हैव टू यूज दीज
correlative conjunctions, and then easily you will be able to say, express your view, your idea, your thinking clearly before the people that no, anyone is thief. So for this purpose you shall have to say either Mohan or his brother is thief, यानी या तो मोहन या तो उसका भाई, यानी anyone is thief, चोर है. either teacher और स्टूडेंट्स आर एट फॉल्ट, या तो टीचर की फॉल्ट है या तो स्टूडेंट की फॉल्ट है, किसी एक की, नॉट ऑफ बोथ, दोनों की नहीं. दिस इज द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एग्जांपल ऑफ नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल, ना ही अध्यापक और ना ही बच्चे, दोनों ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये सडन हुआ, व्हाट एवर इज देयर. सो दीज आर द कोरिलेटिव conjunctions. Now example of correlative coordinating, subordinating and correlative conjunctions, again you can see here in your note. You will find example of correlative coordinating conjunction is here, and also both, and as well as, to, no less than, not only, dash dash, but also. In same way subordinating conjunction example is other way on other page. Now now parts of coordinating conjunction. There are how many parts of coordinating conjunction? Because coordinating conjunctions represent or shows our four views, and everybody has in his her life four views, and coordinating conjunction expresses all these four views. So coordinating conjunction are of four types. What type of views of human being? First, cumulative मीन्स जोड़ बताने वाले, यानी कुछ ऐसा जो व्यक्ति बोलता है तो जोड़ता जाता है, तो वहां पे क्यूमुलेटिव जोड़ बताने वाले कंजंक्शन होते हैं. और वो कंजंक्शन आप देख सकते हैं एंड, also, not only, but also, both, and etc. These are the example of cumulative conjunction, means जोड़ बताना. जैसे राम इज गुड बॉय, सोहन इज गुड बॉय. अब आप क्या कहते हो, राम एंड सोहन इज गुड बॉय, आर गुड बॉय, यानी एक बार में आपने कहा कि दोनों गुड हैं. अलग अलग भी कर सकते हो, एक बार में भी कहा. इसी तरह से आफ्टर दिस cumulative conjunction, cumulative coordinating conjunction comes adversative coordinating conjunction. यानी coordinating conjunction जब हम बात करते हैं तो उस समय एक adversative, यानी जब व्यक्ति बात करता है दूसरा मूड होता है तो वह adversative विरोधाभासी बात करता है, यानी उसके बात में कहीं ना कहीं अपोजिट सेंस होता है. That is called the adversative conjunction, and you can find here adversative conjunctions example: but, still, etc., nevertheless, while, whereas, only, and there are other also. So these are the adversative. These shows adversative, विपरीत sense. जैसे in first example in earlier I told Mohan wants to play, full stop. सोहन वांट्स टू रीड. एक तो खेलना चाहता है और एक पढ़ना चाहता है, तो यहाँ पे तो अपोजिट हो गया. अगर यही कहा जाता है कि मोहन वांट्स टू रीड, सोहन वांट्स टू रीड, दोनों खेलना चाहते, तब तो सोहन एंड मोहन वांट्स टू रीड दोनों के लिए हो जाता है. तो ये तो क्यूमुलेटिव में चले जाते हैं, दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं. लेकिन नहीं, यहाँ देयर आर टू कैरेक्टर्स, टू सब्जेक्ट्स, एंड बोथ आर गोइंग इन टू अपोजिट डायरेक्शन. वन वांट्स टू प्ले, वन वांट्स टू रीड. So you shall have to use for this the adversative conjunction, means which shows the sense of opposite, sense of two directions. So here you shall have to say Mohan wants to read but Sohan wants to play. और but की जगह पे आप while भी यूज कर सकते हो. You can use while at the place of, or instead the place of but. Mohan wants to read while Sohan wants to play. इस तरह से एडवर्सेटिव कंजंक्शन है. आफ्टर दैट थर्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज इलेटिव. इलेटिव मीन्स कंक्लूसिव, जो रिजल्ट बताएं, जो परिणाम बताएं,
जिससे पढ़ने से हमें लगे कि सेंस, हाँ ऐसा है, इसी वजह से यह हुआ, ड्यू टू दिस फैक्ट दिस हैपेंड, दिस इज द इलेटिव कंजंक्शन. फॉर एग्जाम्पल, सुरेश इज वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम कर रहा है, सो दैट ही माइट सक्सीड, ताकि वह सफल हो सके. यानी कठिन परिश्रम तो कर रहा है, लेकिन उस परिश्रम का रिजल्ट क्या चाहता है कि वह पास हो जाए. या इसी को आप ऐसे भी कह सकते हो कि सोहन वांट्स टू सिक्योर गुड मार्क्स, क्योंकि सोहन जो है अच्छा नंबर लाना चाहता है. सो अतः, देखिए रिजल्ट कंसिक्वेंस बता रहा है, इन्फरेंस, कि अतः इसलिए ही इज वर्किंग हार्ड, सोहन या मोहन अच्छा नंबर लाना चाहता है, इसलिए वह कठिन परिश्रम कर रहा है, कठिन मेहनत कर रहा है और पढ़ रहा है. आई ट्राइड टू कैच हिम, मैंने उसे पकड़ने का प्रयास किया. सो आई वॉज फॉलोइंग हिम, चेजिंग हिम, मैं उसे क्यों चेज कर रहा था, क्योंकि मैं उसे पकड़ना चाह रहा था. एंड फोर्थ टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज ऑप्टेटिव, दैट इज ऑप्टेटिव मीन्स होता है ऑप्शनल, यानी चौथा मूड व्यक्ति का होता है कि उसके पास ऑप्शन होते हैं, वो ऑप्शनल चीजें वो एक्सप्रेस करता है. दोज आर कॉल्ड ऑप्टेटिव कंजंक्शंस एंड दोज मूड सेंस आइडियाज सेंटेंसेस कैन बी एक्सप्रेस्ड विथ द हेल्प ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, जो कि विकल्प हमारे पास करें, प्रेजेंट करें, which can show option before us. For this we shall have to use words either, or, neither, nor, or, nor, else, etc. For example, either sit silently in class or go out, या तो बैठो चुपचाप या तो फुटो, बाहर निकलो. तो ऑप्शन है ना, यानी आप ही पर डिपेंड है, इट डिपेंड्स ऑन यू. इफ यू वांट टू सिट, यू वांट टू स्टडी इन क्लास, देन यू शैल हैव टू कीप साइलेंस, आपको चुपचाप रहना पड़ेगा, ऑप्शन आपके पास है. और नहीं पढ़ना चाहते हो तो शोर बचाओ, आउट हो जाओ, ऑप्शनल है. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. द वीडियो इज बीइंग सो लॉन्ग, it will cause difficulty in uploading, so I am stopping here, and in next video I shall describe subordinating conjunction and after that correlative conjunctions. Okay, thank you. Study more, note it down on your fair, and this lecture try to understand with the help of video and the notes, combination of, and if you make combination between both, listen video, try to understand with the help of copy your notes by putting before you, then you will be easily able to understand. And if any problem occurs, then contact me through my personal number, as you all are contacting me. That's right. Okay, thank you.